और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हर साल रिपब्लिक डे परेड से पहले तीनों सेनाओं द्वारा परेड में सम्मिलित होने वाले कंटिंजेंट और इक्विपमेंट के बारे में मीडिया सहकर्मियों को प्रेस ब्रीफ द्वारा एक जानकारी दी जाती है। इसी के तहत आज की यह प्रेस ब्रीफ इंडियन आर्मी से सम्मिलित होने वाले आर्मी कंटिंजेंट और इक्विपमेंट के बारे में। This press brief would be presided by Major General Sumit Mehta, Vichit Sena Medal, Chief of Staff, Delhi area. I'll now just give you the rundown of today's event. Initially, the Chief of Staff, Delhi area would be addressing us all with respect to the Indian Army's contingent and equipment that would be participating in the Republic Day Parade 2024. Post this, we would be open for any queries or clarification if you may have so. For this, I will request you to raise your hands and when nominated, please introduce yourself as well as your media house you represent, and thereafter please ask your questions. Here itself, I would like to request as well as emphasize that please restrict your queries or clarification sought to the army contingents and equipment which are participating in Republic Day Parade 2024. No other query which whether be related to operational or any other aspect will be entertained over here. Post this, we have among us the officers who will be leading various contingents in the Parade 2024, Republic Day Parade 2024. They will be standing at your right and back, so we request you to, if you want, you can interact with them. Now, before I request the Chief of Staff Delhi area to address us all, I will take this opportunity to introduce the General Officer. Major General Sumit Mehta, Vichit Sena Medal, was commissioned into 44 Armored Regiment in June 1992. He is an alumnus of Dale Nobili School, Dhanbad, St. Michael's School, Patna, National Defence Academy, Kadakwasta, and Indian Military Academy, Dehradun. General Officer has served in varied terrains to include Jammu and Kashmir, Siachen Glacier, on line of actual control in Arunachal Pradesh and Eastern Ladakh. The General Officer has also operated in the Thar Desert and plains of Punjab. Amongst other appointments held, he has been the AD Camp for the Chief of Army Staff, Battalion Commander at Indian Military Academy, Dehradun, and on staff appointments in Mechanized Forces Directorate and Military Secretary's Branch at Army Headquarters. He has served with the United Nations on Golan Heights in Syria and Israel. He is a graduate of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command, and National Defence College course, which he did in Nairobi, Kenya. He holds master degrees in International Relations and Peace Studies. The officer is the recipient of Army Commanders and Chief of Army Staff Commendation Cards. He was conferred with Vichit Seva Medal in 2010 for distinguished service by the President of India. Major General Sumit Mehta ने 4 नवंबर 2023 को दिल्ली एरिया चीफ ऑफ स्टाफ का कार्यभार संभाला और तब से इस पे कार्यरत है। अब मैं मेजर जनरल सुमित मेहता से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हम सबको संबोधित करें। सब यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के मीडिया ब्रीफ्स में आप लोग सम्मिलित हुए थे और आज हम आपको आर्मी और चूँकि दिल्ली एरिया इस पूरे इवेंट का कोऑर्डिनेटर है, तो इस पूरे इवेंट जो रिपब्लिक डे को होगा और फिर आगे जाके मीटिंग रिट्रीट के समय समापन होगा, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। 26 जनवरी हमेशा की तरह भव्य परेड की पूरी तैयारी है, जो आप कंटिंजेंट कमांडर्स से इसके बाद मिलेंगे, जो आपके समक्ष है। इन्होंने 17 तारीख से अपने एफर्ट्स कर्तव्य पथ पर डाले
आज अभी हम सारे फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद यहाँ आ रहे हैं। जो हमें अपने लिए चुनौतियाँ और जो स्टैंडर्ड्स सेट किए थे, हमने उस लेवल को तकरीबन हासिल कर लिया है। उसको 2 नॉच और ऊपर ले जाएंगे। 26 जनवरी को उसकी भव्यता और बढ़ाएंगे। आपको पता है कि रिपब्लिक डे का थीम विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका जननी, ये 2 मेजर थीम्स हैं। इनके अलावा नारी शक्ति का इस रिपब्लिक डे के ऊपर आप देखेंगे कि उनका भागीदारी, उनका चमकता उदाहरण आपके सामने पेश होगा। उसके साथ ही आत्मनिर्भरता के ऊपर जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, जो इक्विपमेंट्स आप देखेंगे, वो आत्मनिर्भरता को भी 1 नॉच ऊपर ले जाएंगे। 26 जनवरी को जो परेड है वो सुबह 10:30 बजे विजय चौक से होता हुआ कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग होता हुआ रेड फोर्ट पर जाकर समाप्त होगा। परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया होंगे और मैं उसका डिप्टी कमांडर हूँ। परेड के सीक्वेंस में जैसा आपने आज तक देखा है, उसमें मामूली सा तब्दील होएगा। एक आह्वान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थ्रू शंखनाद प्लस सर्टन मोर एक्टिविटीज से वो लोग आह्वान करेंगे और उसके बाद परेड कर्तव्य पथ पर उतरेगा। कमांडर और डिप्टी कमांडर परेड के पीछे हमारे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता होंगे और उनके बाद फ्रेंच कॉन्टिंजेंट, जो कि इस बार के चीफ गेस्ट हिज एक्सीलेंसी श्री इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के उपस्थिति में कर्तव्य पथ पर अग्रसर होगा। उनके पीछे माउंटेड कॉलम और उसके बाद मैकेनाइज्ड कॉलम। मैकेनाइज्ड कॉलम के पीछे हमारी मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स, जिसमें सबसे पहले इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, फिर एयरफोर्स और फिर CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, NCC, NSS नेशनल सर्विस स्कीम और उनके पीछे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चे होंगे। उसके बाद टैब्लूज, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के द्वारा एकत्रित की गई है। उनके पीछे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा होगा और अंत में एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट। इसके पहले कि मैं इसके आगे जाऊं, मैं आपको चंद एक चीज़ें बताना चाहता हूं जो हमारे वेरियस कंटिजेंट्स हैं उनके बारे। जो परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता है, आपको मालूम है कि आज तक 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं, जिनमें से 7 परमवीर चक्र जीवित इंसानों को, सोल्जर्स को दिए गए थे। उनमें से आज 3 सोल्जर्स जीवित हैं, 2 कर्तव्य पथ पर 26 तारीख को होंगे। ऑनरी कैप्टन सूबेदार योगेंद्र सिंह और सूबेदार मेजर संजय कुमार। इनके अलावा अशोक चक्र अवॉर्डीज में मेजर जनरल C.A. पीकेवाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, और उनके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम एवं कर्नल के श्रीराम।
वो भी उपस्थित होंगे। जो फ्रेंच कॉन्टिजेंट है उनके कॉन्टिजेंट कमांडर कैप्टन आर्मी नोएल लुई हैं, जो आपके समक्ष हैं। आप इनसे इसके बाद बात कर सकते हैं। वो 2nd बटालियन द फ्रेंच फॉरेन लीजन से बिलोंग करते हैं। इनके साथ इनका एक मार्चिंग बैंड का कॉलम है जो 30 लोगों का होगा और 90 लोग मार्च करेंगे। जब आप उनसे बात करें तो उनसे आप पूछिएगा कि फ्रेंच फॉरेन लीजन में क्या साउथ एशिया के लोग हैं, क्या भारत के लोग हैं, क्या नेपाल के लोग हैं। उनके इस मार्चिंग कंटिजेंट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान और नेपाल से बिलोंग करते हैं। जब ये मार्चिंग कंटिजेंट डायस प्रेसिडेंशियल डायस के सामने से गुजरेगा तो उनके ऊपर से फ्रेंच एयरक्राफ्ट फ्लाई पास करेंगे। एक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर जो कि 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक समय में रिफ्यूल कर सकता है, और उसके अलावा 2 रफाइल जहाज जो इनके बेस से उड़कर यहाँ तक आएंगे और कर्तव्य पथ के ऊपर से फ्लाई पास करके अपने बेस को लौट जाएंगे। उनके पीछे 61st कैवलरी का माउंटेड कॉलम होगा। आपको पता है 61st कैवलरी का शौर्य 1953 पोस्ट इंडिपेंडेंस में इस यूनिट को एकत्रित किया गया था, और उसके बाद से ये दुनिया में एकमात्र ऐसी माउंटेड यूनिट है जो घोड़ों पर सवार है। जो मैकेनाइज्ड कॉलम है उसमें सबसे पहले T-90 भीष्म टैंक्स होंगे, उसके बाद नाग मिसाइल सिस्टम, फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की सारथ BMP-2 इक्विपमेंट, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, एडवांस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन जैमर, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो एडवांस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम तथा ड्रोन जैमर्स हैं और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये पहली बारी कर्तव्य पथ के ऊपर रिपब्लिक डे परेड में दर्शाए जा रहे हैं, और ये कटिंग एज इक्विपमेंट है जो कि विभिन्न कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस में हमारे फोर्सेस के सहयोग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इनके साथ ही आप देखेंगे अ न्यू जनरेशन ऑफ व्हीकल्स जो कि नाना प्रकार के टेरेन तथा वेरियस सब कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल ऑपरेशंस के तहत मोबिलिटी व प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। ज़्यादातर इंडिजिनस 1-2 इक्विपमेंट मेक इन इंडिया। आप ऑल टेरेन व्हीकल, स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, लाइट स्ट्राइक व्हीकल, व्हीकल माउंटेड इंडियन मोटर सिस्टम, इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, क्विक रिएक्शन व्हीकल, हेवी एंड मीडियम, इन सब को अपने समक्ष देखेंगे। जब आर्मी की ये मैकेनाइज्ड कॉलम प्रेसिडेंशियल डायस क्रॉस करेगी, उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट होगा जो कि रुद्र एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेटेड प्लस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाएगा। जो मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स उसके बाद आएंगे वो 12/12 के रो और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। 144 लोग परेड कमांडर और सुपर न्यूमरीज के अलावा वो
कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए निकलेंगे। इस बार के परेड में आप देखेंगे कि कुछ कॉलम्स जो कि इन्फेंट्री बटालियंस, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को दर्शाती है, वो मेल कॉलम्स है। बाकी कुछ विमेन कॉलम्स है, कुछ ट्राई सर्विसेज कॉलम्स है। जो आर्मी के कॉलम्स हैं उनमें से मद्रास रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स, राजपूताना राइफल्स, और उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट टाइम एवर ट्राई सर्विसेज कंपोनेंट ऑफ विमेन, जिसमें कि इंडियन आर्मी से कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की महिलाएं हैं, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से महिलाएं हैं। इनको लीड करती हुई एक कैप्टन होगी और उनकी जो सुपर न्यूमरीज हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से होगी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑल विमेन कंपोनेंट, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जब एक ट्राई सर्विस कंपोनेंट इकट्ठे कर्तव्य पथ पर उतरेगा। उनके पीछे सिख रेजिमेंट, फिर कुमाऊं और नागा, और उसके बाद बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप का कंटिजेंट होगा। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप के कंटिजेंट को एक महिला अफसर मेजर दिव्या वो लीड कर रही है। उनके साथ पीछे आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का कंटिजेंट होगा, जो भी एक ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट है। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस के 5 पिलर्स होते हैं: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मेडिकल कंपोनेंट्स, फिर डेंटल कंपोनेंट और फिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इन 5 कंपोनेंट्स के लोग उसमें सम्मिलित हैं। जो मार्चिंग कंटिजेंट है वो उसको लीड करेंगी आर्मी मेडिकल कोर की अफसर, और जो सुपर न्यूमरीज हैं वो डेंटल कोर, नेवी और एयरफोर्स की अफसर हैं, और जो कंटिजेंट है जो मार्च करेगा वो तमाम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की महिलाएं हैं। इंडियन नेवी कंटिजेंट और एयरफोर्स कंटिजेंट उसके बाद आएगा, और उसके बाद DRDO, जो कि इस बार नारी शक्ति के द्वारा सुरक्षा कवच प्रोवाइड किया गया 5 डिमेंशंस में लैंड, सी, एयर, स्पेस तथा साइबर को दर्शाएगा। उसके बाद CAPF के कॉन्टिजेंट्स होंगे, जो कि इस बार तमाम विमेन कंटिजेंट्स हैं। जो BSF का कैमल कंटिजेंट है वो आप देखेंगे वो एक मिक्स्ड कंटिजेंट होगा, जिसमें कि मेल के साथ साथ विमेन सोल्जर्स भी हैं। इस बार NCC की कंटिजेंट्स दोनों गर्ल्स की हैं और उनका बैंड भी गर्ल्स का है। एक आर्मी को दर्शाता, दूसरा ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट। सिमिलरली नेशनल सर्विस की भी ऑल गर्ल्स कंटिजेंट है। इस बार प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता 19 बच्चों को दिया गया है, जिनमें से सबसे कम उम्र के 6 साल के का बच्चा है। एक पुरस्कार पॉस्टमस दिया गया है। जो बाकी 18 बच्चे हैं वो परेड के साथ 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होंगे। जो टैबलूज हैं वो इस बार 26 टैबलूज होंगे। 16 स्टेट्स व यूनियन टेरिटरीज से और 9 मिनिस्ट्रीज व वेरियस डिपार्टमेंट्स के, और उसके पीछे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जो इस बार 1400 महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। एक वंदे भारत कॉम्पिटिशन उन्होंने किया था, जिसमें से ये 1400 को उन्होंने सेलेक्ट किया है। और इस बार पहले की बारों से थोड़ा भिन्न, पहले के बारों में ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस होता था वो डायस के सामने होता था, प्रेसिडेंशियल डायस के सामने होता था। इस बार जनपद से लेकर
मानसिंह तक ये 1400 जो विमेन कल्चरल आर्टिस्ट हैं वो सारी फैलेंगी और इकट्ठे इस पूरे इलाके में उनका परफॉर्मेंस किया जाएगा। इनके पीछे लास्ट में मोटरसाइकिल डिस्प्ले रोमांचक करतब व कंट्रोल दर्शाएगा, जो कि सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल व आईटीबीपी की महिलाएं होंगी। अंत में जिसका सबको इंतजार होता है, एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट कंडक्ट किया जाएगा। 51 एयरक्राफ्ट्स जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, हेरिटेज एयरक्राफ्ट डकोटा, एवैक्स, मैरीटाइम पेट्रोल व फाइटर्स के द्वारा किया जाएगा। इसमें भी 15 पायलट्स विमेन होगी। परेड के अलावा 29 तारीख को बीटिंग रिट्रीट का कार्यवाही होगा, जो कि शाम को 1700 बजे से किया जाता है। इसमें आर्मी के 21 मिलिट्री बैंड्स, पाइप्स एंड ड्रम्स होंगे। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बैंड्स हैं। उसके अलावा 3 सीएपीएफ यानी सीआईएसएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के भी बैंड्स हैं, जो कि इंडियन ट्यून्स, भारतीय ट्यून्स व मार्चिंग और पेट्रियाटिक ट्यून्स बजाएंगे। और इस इवेंट का समापन ब्यूगल कॉल के साथ सूर्यास्त के समय किया जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि इस रिपब्लिक डे परेड में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग से या आकर्षक हैं, तो मैं उसको आपके लिए समराइज करता हूँ। पहला, आह्वान का कार्रवाई। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछली बार परेड के डिप्टी कमांडर थे, वो इस बार परेड के कमांडर। तीसरा, जो फ्रेंच कॉन्टिंजेंट है वो हमारे सारे रिपब्लिक डे में ये इस बार 6ठी बार फ्रेंच के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट हो रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बार किसी देश को हमारी देश ने इनवाइट किया है। और 2016 में जब वो आए थे तो पहली बारी किसी फॉरेन कॉन्टिंजेंट ने कर्तव्य पथ उस समय राजपथ पर मार्च किया था, और इस बार वो दूसरी बारी फ्रेंच कॉन्टिंजेंट आई है, मार्च कर रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से असिस्टेड मोबिलिटी, जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, वैसे व्हीकल्स आपको दिखाए जाएंगे। जो विमेन का प्रेजेंस, विमेन का, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इस बार, वो आप देखेंगे कि 80% जो कार्रवाई होगा राजपथ पर, अभी कर्तव्य पथ पर, वो विमेन के द्वारा होगा इस बार। इसके साथ जो चंद एक चीज़ें मैं आपको परेड के बारे में बताना चाहता था, वो मैंने आपसे कवर किया। इसके आगे अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कर सकते हैं। धन्यवाद। We are open for any queries or clarification. Good afternoon, sir. This is Agraj Pratap Singh from the Statesman newspaper. I would just like to ask you about the first time showcased weaponized systems, and would you like to give a little more brief about that? What are the specialities and Anyone else, please? Ajit. Sir, Rajiv Rajan. Sir, I am Ajit Dubey from NIA.
Sir, this side on your right, sir. Sir, can you explain the Shank, the Avan ki karwai in English? Like what would be done and why is this special this time? इस साइड राजीव रंजन एडिटरी। सर मेरा सवाल था कि परेड जो है सर क्या 10:30 से स्टार्ट होकर कितनी देर तक चलेगा इंक्लूडिंग फ्लाई पास्ट? अगर जोड़ लिया जाए फ्लाई पास्ट को सर तो कितनी देर तक होगा जब बता पाएंगे प्लीज? Okay, so first, Agraj, I would urge you, all the contingent commanders that you see in combat dress, they are the people on them. I want you to interact with them and take those inputs. They'll be very conversant and they'll give you interesting inputs on them. Ajit, you speaking about Avan. Avan is a traditional way of calling in people whenever a particular event starts. So that is what the Ministry of Culture wishes to introduce to the spectators. So it has 100 women performing various kinds of instruments, which include wind, as in Shank, as in from Maharashtra, the ones that you had when Shivaji would move out with his forces. Apart from them, you have percussion instruments like dhols from various states. This has been put together, and it will be a way of calling in an activity which is the Republic Day Parade as a introductory activity to that. That is what is envisaged. Going on to the parade timing, the parade timing is going to be 100 minutes. It will start at 10:30 with the unfurling of the flag, national flag, and it will culminate with the last fly past. So you will find, you can time it by a watch, 100 minutes it would get over. Do we have any other queries? Yeah, Manish. सर मैं मनीष हूँ इंडिया टीवी से। इस बार गार्ड्स कौन सी आर्म फोर्सेस में किसके पास होगी और जो फ्लैग अनफोल्ड करेंगे उस ऑफिसर का नाम क्या है या कुछ डिटेल जो उस समय सुप्रीम कमांडर के साथ होगी? Could you repeat, please? Manish, you mentioned something about the guards. हाँ सर Can you just elaborate on that? What is on your mind? सर इस बार जो फ्लैग अनफोल्ड करेंगी सुप्रीम कमांडर के साथ वो कौन सी लेडी ऑफिसर होंगी और उनकी कुछ डिटेल पता लग सकती है कुछ जानकारी? Anyone else? चामी साहब, DK चौहान फ्रॉम आधुनिक इंडिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट से जो इस बार जो महिलाएं इसमें आप लोग का शामिल हो रहा है, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट के कितने महिला शामिल हो रहे हैं? दूसरा है कि जो टैब्लूस है उसमें नॉर्थ ईस्ट को क्या क्या दर्शाया गया है? Do we have anyone else? Thank you. Yeah, somebody is there behind. सर दिस इज अंजू रिवान फ्रॉम TV9 भारतवर्ष। इस बार सर जो उत्तर प्रदेश की जो टैब्लू बनी है उसमें राम की प्रतिमा दिखाई गई है, थोड़ा सा सर उस टैब्लू के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ बताएं। Okay, thank you. Okay, first Manish, it's Major Soumya. She's a Soumya Shukla. She's a commissioned officer from the Army Service Corps, presently posted at Delhi. She will be unfurling the flag. DK pertaining to North East, जो एक टैब्लू है वो मणिपुर से आ रहा है इस बार। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो सभी पूरे देश से किया है उसमें सम्मिलित है। जब आप उनको देखेंगे तो आप उनको समझ पाएंगे। तीसरा अंजू, जो ये टैब्लू है वो हर स्टेट्स के द्वारा अपना अपना जो उनका वेरियस एस्पेक्ट्स है वो दर्शाया